Hi dear students, now today we start the next point, that is point chemical properties of aldehyde and ketone, in which we see the next point, that is the haloform reaction. Haloform reaction, it is also called as a iodoform test. Iodoform test, it is the very important test for the some important compounds which give the color taste, that is like acetaldehyde, like the methyl, all methyl ketones, and the some alcohol compound which consist of CH3CHOH group. So starting this point, firstly we see the very important and key point of the haloform reaction which can be remembered. Okay, so first point, that is key point in haloform reaction, that is the first point, that is the haloform reaction or iodoform test is shown by the compound, that is acid aldehyde, then all methyl ketone. Now see here, all methyl ketone means the ketone compound in which one side of the carbonyl carbon atom methyl group is attached and there is various chain is available. So this is called as a methyl ketone. So all the methyl ketones, acetaldehyde and alcohol, that is alcohol which consists of CH3 CHOH group. Okay, so these are the some important compound which show the haloform reaction or positive iodoform test. So this is the first point, that is acetaldehyde, all methyl ketones and the alcohol which consist of CH3CHOH group is show the पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट और हैलोफॉर्म रिएक्शन. जब रिएक्शन में आपको बताऊंगा तब मैं डीपली फिर से आपको ये सिखा दूंगा. तो यहाँ पे इतना याद रखना है कि हैलोफॉर्म रिएक्शन कौन कौन बताता है. फर्स्ट इज एसिटाल्डिहाइड, सेकेंड इज ऑल मिथिल कीटोन एंड अल्कोहल विच कंसिस्ट ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप, दैट इज CH3CHOH. नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, दैट इज नॉन methyl ketones, non-methyl ketone does not show positive iodoform test. positive iodoform test मतलब जिस कीटोन में अगर मिथिल ग्रुप एब्सेंट रहा देन इट डज नॉट शो द पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, मतलब ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं बताएगा. यहाँ पे आपको येलो पीपीटी नहीं मिलने वाली. ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड की पॉइंट, दैट इज नॉन मिथिल कीटोन डज नॉट शो द पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट. ओके, नाउ सी हियर थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट. अपन ने ऊपर बोला कि सेकेंडरी अल्कोहल विच कंसिस्ट ऑफ CH3COH ग्रुप, इट शो द पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट और इट शो द हेलोफॉर्म रिएक्शन बिकॉज द रिएजेंट, इसमें रिएजेंट कौन सा यूज करने वाले अपन, दैट इज सोडियम हाइपोआयोडाइड. सोडियम हाइपोआयोडाइड फॉर एग्जांपल, दैट इज द secondary alcohol. When it is react with in this reaction, it show the secondary alcohol which consists of CH3CHOH group. Okay, it show the positive iodoform test because this secondary alcohol or the alcohol which consists of CH3CHOH, it show the positive iodoform test with the sodium हाइपोआयोडाइड. ये जब सोडियम हाइपोआयोडाइड से रिएक्शन करता है या फिर इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड आयोडीन. ओके, सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन इट इज रिएक्ट टुगेदर एंड इट गिव द कंपाउंड विच इज कॉल्ड एज अ सोडियम हाइपोआयोडाइड. नाउ दिस सोडियम हाइपोआयोडाइड इज ऑक्सीडाइज्ड to secondary alcohol into CH3CO group, that is ketonic methyl ketonic group. Therefore secondary alcohol show the positive iodoform test. क्यों? क्योंकि ये secondary alcohol का जो CHOH ग्रुप है सोडियम हाइपोआयोडाइड इसे क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है और इसका कन्वर्जन CH3COH में करता है एंड सब्सिक्वेंटली दैट CH3COH ग्रुप दैट इज मिथिल कीटोन्स show the positive iodoform test and it give the yellow PPT. Okay, this is the third and important point. And the last and important point, that is fourth point, if there is carbon carbon double bond or carbon carbon triple bond is present
is present in given aldehyde or ketone or methyl ketone, it does not अटैक बाय सोडियम हाइपोआयोडाइड। अगर आपको कीटोन दिया है, अल्डिहाइड दिया है और उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और उसी के साथ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, या दोनों में से कोई भी एक रहेगा, दैट इज सी डबल बॉन्ड हो या सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ओके, देन इट डज नॉट शो द iodoform टेस्ट, okay, because the reagent, that is sodium hypoiodide, does not attack on that particular aldehyde and ketone. So this is the very important key point. तो ये चारों की पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहला की पॉइंट है एसिटाल्डिहाइड और ऑल मिथिल कीटोन और द अल्कोहल which consists of CH3COH group, it show the positive iodoform taste or it show the haloform reaction and it give the yellow ppt of iodoform, okay. Next, that is the second point is that the non-methyl ketone does not show positive iodoform taste. अपन ने यहाँ पे क्या बोला ऊपर कि जिसमें मिथिल ग्रुप एक साइड में अटैच रहेगा वही कीटोन क्या बताएंगे, हेलोफॉर्म रिएक्शन और आइडोफॉर्म टेस्ट, बट नॉन मिथिल कीटोन डज नॉट शो दैट रिएक्शन। दैट इज वी नो अबाउट दैट, अपन ने ऊपर लिखा CH3COH, that is secondary alcohol show the positive iodoform test. क्यों? Because that is sodium hypoiodide is oxidized to secondary alcohol into the methyl ketone and that methyl ketone subsequently it show the positive iodoform test. But if the given compound aldehyde or ketone is consist of carbon carbon double bond or carbon carbon triple bond, then it does not attack by the reagent, that is sodium hypoiodide. मतलब यहाँ पे ये कौन सी रिएक्शन नहीं बताएगा, haloform reaction or iodoform test, okay. So this is the some important point. Now today we see the very important, that is the reaction of haloform test or iodoform test, okay. So in this point we see that the example of acetone. Now when acetone is oxidized by sodium hypoiodide, it give the yellow ppt of iodoform, it gives the yellow ppt of iodoform and sodium salt of carboxylic acid, that is acetic acid, which consists of one carbon atom less than the reactant. So ये अपन ने जो 4 पॉइंट देखे, की पॉइंट, इसमें अपन इसकी स्टेटमेंट इस तरीके से लिख सकते हैं, व्हेन एसिटाल्डिहाइड all methyl ketone or secondary alcohol containing CH3CHOH group is warm with or is heated with sodium hypoiodide. Now sodium hypoiodide, it is prepared by the mixture of sodium hydroxide and iodine, okay. That sodium hypoiodide, it give yellow ppt of iodoform and sodium salt of carboxylic acid, which consists of one carbon atom less than the reactant. So here we see the reaction for the one example, that is acetone. Acetone के लिए अपन यहाँ पे ये reaction देखेंगे. Now here when acetone, okay, when acetone, that is CH3 C double bond O CH3, when acetone is react with, अब यहाँ पे जो आपको रिएजेंट दिया है NaOH plus I2, that is सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड I2, ये दोनों खुद रिएक्ट होंगे और अपनों को यहाँ पे मिलेगा 3 moles ऑफ NaOI। अपन यहाँ पे 3NOH ले सकते हैं, आयोडीन कितना ले सकते हैं 3I2, ये वॉटेवर। तो यहाँ पे अपनों को कितने रिएजेंट यूज करने हैं, 3 moles ऑफ सोडियम हाइपोआयोडाइड, सोडियम हाइपोआयोडाइड। Now this sodium hypoiodide, okay, whenever react with acetone, it give the product of iodoform. iodoform का फुल फॉर्म फॉर्मूला है CHI3, okay, क्या है बेटा, CH3, that is called as a iodoform, plus it give the side product, that is sodium acetate, O minus Na plus, which consists of one carbon atom less than the reactant. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सोडियम एसिटेट. Now in a sodium acetate
यहाँ पे कितने कार्बन है 1 and 2 एंड रिएक्टेंट एसीटोन में कितने 1 2 3. सो इट गिव द sodium salt of carboxylic acid or sodium acetate which consists of one carbon atom less than the reactant. तो यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे कितने टोटल 3. So this is the very simple reaction that is called as a iodoform test. तो यहाँ पे जो iodoform रहता है ये कौन सा कलर का रहता है बेटा yellow ppt of iodoform. Yellow ppt of iodoform. So the statement of this reaction is like that when acetone is oxidized with sodium hypoiodide, it gives the compound of yellow ppt of iodoform and sodium acetate or sodium acetate which consists of one carbon atom less than the reactant. So this is the very simple reaction. यहाँ पे जो CH3 ग्रुप रहता है ये CH3 ग्रुप का कन्वर्जन किस में हो जाता है that is CHI3 that is iodoform and we got the yellow ppt of iodoform and plus we also form the side product that is sodium acetate plus twice moles of sodium hydroxide. So this is the one of the very important reaction that is the haloform reaction or iodoform test. Now our next point that is very important point which is called as a aldol condensation reactions. Now see here our next reaction is aldol condensation reaction. Now see here this is the very important reaction of this chapter that is aldol condensation reaction. Now this reaction, in this reaction the aldehyde and ketone containing at least one alpha hydrogen atom undergo reaction in presence of dilute alkali like sodium hydroxide, potassium hydroxide or sodium carbonate as a catalyst to give or to form beta hydroxyaldehyde or beta hydroxyketone. Now beta hydroxyaldehyde is also called as a aldol and beta hydroxyketone is called as a ketone. So important is that is in this reaction that is the compound which is formed that is beta hydroxyaldehyde or beta hydroxyketone, okay, is called as a aldol or ketones. Okay, now see here importance of this reaction that is in this reaction that is aldehyde and ketone is consist of at least one alpha hydrogen atoms. Okay, now in this reaction मैं फिर से रिपीट करता हूँ स्टेटमेंट that is when aldehyde and ketone which consist of at least one alpha hydrogen atom, okay, one or two alpha hydrogen atom that is अपन बोलते one at least one alpha hydrogen atom undergo reaction with each other in presence of dilute alkali like NOH, KOH or sodium carbonate, it gives the product of alpha hydroxy ketone, sorry alpha hydroxy नहीं, beta hydroxy aldehyde or beta hydroxy ketone, and this reaction is called as a aldol condensation reaction because in this reaction the compound contain both aldehyde, ald मतलब aldehyde group and ol means alcohol group in the same compounds. So in this reaction that is the aldol formed from aldehyde having alpha hydrogen atom undergoes subsequently elimination of water molecule on heating in a second step. Therefore this reaction is also called as a nucleophilic addition elimination reaction. देखो अभी स्टेटमेंट समझाया इतना आपको क्लियरली समझेगा नहीं जब, लेकिन जब मैं रिएक्शन आपको समझाऊंगा तब टोटल ये समझ जाएगा. So today we see the very important reaction that is aldol condensation reaction. So firstly we see the statement for the aldehyde. Now for aldehyde, okay. Now firstly you know about that what is meant by alpha hydrogen atom. अल्फा हाइड्रोजन एटम किसे बोलते हैं that is जो कार्बोनिल कार्बन एटम रहता है इन अल्डिहाइड एंड कीटोन उसके एडजेसेंट जो कार्बन एटम रहता है उसे अपन क्या बोलते हैं अल्फा कार्बन एटम. अगर वो अल्फा कार्बन एटम में अगर हाइड्रोजन एटम अटैच है तो उसे अपन क्या बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन एटम. सो सी हियर वी सी द एग्जांपल ऑफ एसिटाल्डिहाइड. फर्स्टली वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाल्डिहाइड दैट इज लाइक दिस. व्हेन acetaldehyde CH3
C double bond OH. Okay, CH3 C double bond OH. This is the structure of acid aldehyde. Now in this structure, this is the carbonyl carbon atom और उसके बाद का जो कार्बन एटम रहता है उससे क्या बोलते हैं अपन, अल्फा कार्बन एटम, and these are the 3 alpha hydrogen atom. Okay, that is when acetaldehyde which consists of alpha hydrogen atom is react together. अब यहाँ पे अपने को कितने एल्डिहाइड मॉलिक्यूल लेना है, 2 मॉलिक्यूल्स. तो दूसरा एल्डिहाइड मॉलिक्यूल में इस तरीके से लिखता हूँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH. ओके, तो यहाँ से जो इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, दैट इज बेस, सॉरी, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली लाइक NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं या फिर Na2CO3 भी यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्टली ये जो बेस है OH माइनस, ये हाइड्रोजन यहाँ से एक्सेप्ट करेगा, ये क्या बनेगा, कार्बेनियन, और ये कार्बन किस पे अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन एटम पे, और ये डबल बॉन्ड क्या होगा, कन्वर्टेड इनटू द सिंगल बॉन्ड, और ये क्या लेगा, हाइड्रोजन. एंड वी गॉट द आवर फर्स्ट कंपाउंड दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, और जिसे अपन क्या बोलते हैं, अल्डोल, लेकिन इसका यूपीएससी और कॉमन नेम थोड़ा अलग है. सो सबसे पहले क्या होगा, दैट बेस अट्रैक्ट द हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन एटम फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड. यहाँ पे कार्बन में कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, दैट इज कार्बेनियन आयन इज अटैक ऑन द पॉजिटिवली चार्ज कार्बोनिल कार्बन एटम. यहाँ पे डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू द सिंगल बॉन्ड, और यह ऑक्सीजन क्या करेगा, ये H लेगा, और अपनों को इस तरीके का एक कंपाउंड मिलेगा HCOH CH देन CH, यहाँ पे CH2 को इस तरीके से लिखता हूं मैं, C डबल बॉन्ड OH. ओके, सो यहाँ पे आपको दिख रहा है दैट इज दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज अ अल्डोल. अल्डोल मीन्स यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है और OH दैट इज अल्कोहल ग्रुप भी प्रेजेंट है, इसलिए अल्डोल. ओके, इसका कॉमन नेम आएगा बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, या फिर इसका IUPAC नेम आता है, नंबरिंग दो, 1 2 3 4, इसका नाम आएगा 4 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल. ओके, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, इसका नाम क्या था बेटा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल. अब देखो यहाँ पे जो अल्डिहाइड मिला है, इस अल्डिहाइड में ये कार्बोनिल कार्बन और उसके बाद का कार्बन कौन सा रहता है, अल्फा, और ये रहता है बीटा. तो इसको कॉमन नेम भी क्या आता है, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड अल्डिहाइड. ओके, सो यहाँ पे इसको बीटा हाइड्रोक्सी एसिटाल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड भी अपन बोलते हैं. अब यहाँ पे दिख रहा है अल्फा कार्बन एटम में फिर से हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या होगा, इट वार्म और इट अंडरगो हीटिंग एंड रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस, एंड वी गॉट द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स. ओके, सो देखो यहाँ पे क्या होगा बेटा, दैट इज CHH. ठीक है, अब यहाँ पे वाटर रिमूव हो रहा है और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, और लास्ट में क्या होगा, C डबल बॉन्ड OH. तो अपनों को यहाँ पे कंपाउंड मिलेगा, इसका नाम आएगा 1 2 3 4, दैट इज ब्यूट 2 इनल. ओके, या फिर इसका कॉमन नेम है क्रोटोन अल्डिहाइड. क्या है, क्रोटोन अल्डिहाइड. सो दिस इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिएक्शन. फिर से एक बार मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ, दैट इज अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन. अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इज शोन बाय द कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन विच कंसिस्ट ऑफ at least 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम इन देयर स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन है, यहाँ पे इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, और इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन. नाउ हियर इन दिस रिएक्शन व्हेन अल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड व्हिच कंसिस्ट ऑफ 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम और 1 or more अल्फा हाइड्रोजन एटम इज रिएक्ट in presence of dilute alkali like NaOH और KOH और Na2CO3, कोई भी लो, अपन तीनों में से अपन ने क्या लिया, dilute NaOH.
फर्स्टली इट गिव द कंपाउंड दैट इज 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल और बीटा हाइड्रोक्सी एसिटाल्डिहाइड, इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, अल्डोल. ओके, तो अल्ड स्टैंड फॉर अल्डिहाइड एंड ओएल स्टैंड फॉर OH group, that is alcohol, तो इसे अपन अल्डिहाइड बोलते हैं. Now see here the aldol or the 3-hydroxybutanol which is formed in this reaction is also consist of अल्फा हाइड्रोजन एटम. यहाँ पे फिर से एक अल्फा हाइड्रोजन एटम, 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम है. तो ये क्या बताएगा, अगली स्टेप बताएगा. मतलब यहाँ पे अपन इसको क्या करने वाले हैं, दैट इज इट अंडरगो हीटिंग. इसको क्या देना है आपको, हीट देना है या फिर इसे वार्म करना है. और अपनों को यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है ब्यूटेन टू इनल, दैट इज प्रोटोनॉल्डिहाइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स. तो यहाँ पे क्या रिमूव होगा, H2O in presence of heat. So this is the very important reaction which is called as a aldol condensation reaction. Okay, now see here this reaction is shown by ketone also which consists of 2 alpha hydrogen atoms. कीटोन कौन से, जिनके पास एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है. इस तरीके की कीटोन अपनों को अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बताएंगे. सो अवर नेक्स्ट पॉइंट दैट इज फॉर द कीटोन. ओके, now aldol condensation for the ketones. Now see here we see the example of acetone. Now the structure of acetone is like that. Okay, मैंने एसीटोन को इस तरीके से लिखा, that is CH3 C double bond O CH3. Now when acetone which consists of at least 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम, इसके पास कितने चाहिए, 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम चाहिए, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम वहां से निकलेगा. लेकिन सेकंड स्टेप में अगर आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाना है तो अपने को यहाँ पे कितने चाहिए, एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम. इज रिएक्ट, अब यहाँ पे अपन इस तरीके से लिख सकते हैं CH2 C double bond O CH3. ओके, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली लाइक NaOH and COH. अब यहाँ पे जो बेस है ये OH माइनस क्या करेगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा अल्फा हाइड्रोजन एटम CH2 इस बिकम कार्बोनियन. ये क्या करेगा, इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू द सिंगल बॉन्ड और ये H+ आयन देगा. ओके, एंड वी गॉट द प्रोडक्ट ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन. सी हियर कैसा मिलता है आपको, दैट इज वी गॉट द प्रोडक्ट ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स. यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स. ओके, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O सॉरी C OH CH. ओके, यहाँ पे आ जाएगा CH3, देन CH2 को इस तरीके से लिखा C डबल बॉन्ड O CH3. ओके, तो यहाँ पे देखो दिस इज अ कार्बोनिल कार्बन, इसे अल्फा बोलते हैं और इसे अपन बोलते हैं बीटा, दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन. और इसको क्या नाम है, कीटोल. ओके, जैसा अल्डोल बोला था उससे अपन को इसे क्या नाम देना है, कीटोल्स. ओके, तो इसका IUPAC नेम आता है 1 2 3 4 5, दैट इज 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथिल. देखो 4 पोजीशन पे मिथिल, ये CH3 साइड में लिखा अपन ने और ये OH और ये CH2 इसको अटैच किया. ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथिल पेंटेन 2 ONE. सो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड. ओके, या इसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज कीटोल. कीट फॉर कीटोन, NOL फॉर अल्कोहल, OH एंड दिस कीटोन. अब नाउ दैट इज वी नो अबाउट दैट इज दिस इज द अल्फा कार्बन एटम. ओके, 1 2 3 4 5. ठीक है, नाउ सी हियर यहाँ पे फिर से क्या है, एक अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है. तो ये अल्फा हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिमूव होगा और ये वाटर यहाँ से रिमूव होता है HOH. मतलब अगर आप इसे हीट करते हैं या वार्म करते हैं. ओके, नाउ दिस
4 hydroxy 4 methyl pentanetoene or ketone undergo heating by removing of water molecule, it give the product of alpha beta unsaturated compound. तो यहाँ पे क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3. तो यहाँ पे ये अल्फा है और ये बीटा है, तो इसे क्या बोला जाता है बेटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स और अनसैचुरेटेड कीटोन. इसका नाम क्या आएगा, 1 2 3 4 5, दैट इज 4 मिथिल पेंट 3 EN और बाद में 2 ONE. ओके, तो इसका नाम आ गया. या फिर इसे अपन जनरली क्या बोलते हैं, यस, मेसिटिल ऑक्साइड. ओके, इसे अपन जनरली क्या बोलते हैं, मेसिटिल ऑक्साइड. सो दिस इज द टू इंपॉर्टेंट रिएक्शन, that is aldol condensation reaction. Now see here, aldol condensation reaction for the aldehyde ketone कौन बताता है, that is यहाँ पे कुछ important point notice करना है, that is aldehyde ketone which consist of at least 1 or 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम, जिसके पास कम से कम 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम चाहिए, 1 और 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम, तब जाके ये कौन सी रिएक्शन बताता है, that is aldol condensation reaction. 1 अल्फा हाइड्रोजन रहेगा तो अल्डोल तक आएगा, लेकिन जब अपनों को यहाँ पे वाटर रिमूव करना है तो उसके पास क्या चाहिए, फिर से एक अल्फा हाइड्रोजन एटम चाहिए. ओके, सो दिस इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिएक्शन इन विच वी सी दैट इज द इम्पोर्टेंस aldol condensation reaction. Aldol condensation reaction, it is also called as a न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन. पहले क्या हो रहा है, 2 कीटोन या 2 अल्डिहाइड क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, और उसके बाद वाटर यहाँ से रिमूव हो रहा है और अपनों को अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिल रहा है. सो आज के लिए ये इतना ही. अगले लेक्चर में अपन इसके मैकेनिज्म देखेंगे, दैट इज मैकेनिज्म फॉर aldol कंडेंसेशन रिएक्शन. थैंक यू.